اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ کپڑے دھوتے دھوتے شبانہ اختر کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل کو اپنی جانب اس طرح کھینچ رہا ہے جیسے درخت کے ساتھ اگی ہوئی مضبوط شاخ کو توڑ کر الگ کرنا چاہتا ہو۔ سیدھے ہاتھ میں صابن پکڑے فرش پر رکھے کپڑے کو وہ مل مل کر دھو رہی تھی۔ اس کا ہلتا ہوا بدن رک گیا۔ الٹے ہاتھ کو سینے پہ رکھ کے اس نے دل کی کیفیت محسوس کرنا چاہی۔ اندر کچھ کلا بازیاں سی محسوس ہو رہی تھی۔ کل رات سوتے میں بھی اسے یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے دل کو پکڑ کر زور سے کھینچا ہو۔ وہ گھبرا کر جاگی اور بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں بستر پر بیٹھی وہ آنکھیں جھپک جھپک کر اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ شاید کچھ اور بھی ہو، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار جوں کا توں تھا۔ وہ پھر سو گئی۔ معمول کے مطابق صبح اٹھی وہ گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ کچن اس نے کبھی کسی کے حوالے نہیں کیا تھا۔ شوہر کو ناشتہ دیا۔ اسے آج اپنی دکانوں کا کرایہ وصول کرنے جانا تھا۔ وہ چلا گیا۔ چھوٹی بیٹی ناشتہ کر کے اپنے کلینک میں چلی گئی تھی۔ گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے کا دروازہ گلی میں کھول کے والدین نے اسے ایک ہومیوپیتھی کلینک کھول دیا تھا۔ پہلے اسے باقاعدہ 3 سالہ کورس بھی کروایا تھا۔ اس سے بڑی 3 لڑکیاں بیاہ دی گئی تھی اور اکلوتا بیٹا لاٹری کے ذریعے کینیڈا چلا گیا تھا۔ چھوٹی بیٹی طلعت کا قد اتنا چھوٹا تھا، لہیم و شہیم شوہر نے پہلے ہفتے ہی اسے ہمیشہ کے لیے گھر بھیج دیا تھا۔ یہ دکھ شبانہ کے کلیجے کو لگ گیا تھا، اگرچہ باپ نے ہمت بندھا کے ایک اچھے کام پر لگا دیا تھا جہاں وہ غریبوں کا علاج مفت کرتی تھی۔ جب دل کی کھچاوٹ اور گھبراہٹ بڑھتی ہی گئی تو شبانہ کپڑے چھوڑ کر ننگے پیر ننگے سر باہر آ گئی۔ طلعت کو آوازیں دی۔ اس وقت کلینک میں کوئی مریض نہیں تھا۔ وہ دوڑی آئی، زرد ہوتی ماں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے امی؟ میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی دوائی لاؤں؟ اس نے ماں کی نبض پکڑ لی۔ نہیں، جلدی سے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، تمہارے ابو تو ابھی کہیں راستے میں ہوں گے۔ امی آپ کپڑے بدل لیں، آپ کے سارے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں، میں باہر نکل کر رکشہ پکڑتی ہوں۔ اتفاق سے ایک خالی رکشہ سامنے نظر آیا۔ اس نے رکنے کا اشارہ کیا، ماں کو بٹھایا اور محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہا ان کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، فوراً کسی ہسپتال لے جائیں۔ مگر ڈاکٹر صاحب ان کی حالت تو غیر ہو رہی ہے، وقتی طور پر کوئی دوائی تو دیں تاکہ یہ ہسپتال تک جانے کے قابل ہو سکے۔ طلعت نے کہا نہیں نہیں، ڈاکٹر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، وقت ضائع نہ کریں، فوراً جائیں، جلدی لے جائیں، جلدی جلدی۔ ڈاکٹر یوں گھبرا کر پیچھے ہٹا کہ طلعت کو سخت غصہ آیا، حالانکہ وہ فیس اور دوائیوں کے پیسے ساتھ لے کر چلی تھی، مگر ڈاکٹر نے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیا۔ رکشہ ابھی باہر کھڑا تھا۔ گرتی پڑتی ماں کو اس نے رکشے میں بٹھایا اور رکشے والے سے کہا پبلک ہسپتال میں لے چلو۔ ماں کو اپنے کاندھے سے لگا کر اس نے اس کی کمر میں بازو ڈال لیا تھا کہ رکشے کے جھٹکے اسے تکلیف نہ دے۔ پھر بھی تھوڑی دیر بعد وہ اس کی نبض چیک کرتی جس کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ اپنے پہلو کے ساتھ لگا کر اس کی دھڑکنیں شمار کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ رکشے کے بے ہنگم شور میں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر ڈاکٹر وقتی طور پر کوئی دوائی دے دیتا تو کیا حرج تھا؟ ماں بے سود ہوئی جاتی تھی۔ راستہ بھی کافی لمبا تھا۔ پبلک ہسپتال آ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے رکشہ والے سے کہا وہاں سامنے جہاں ایمرجنسی لکھا ہے لے چلو۔ باہر ہسپتال کے کچھ ملازم کھڑے تھے۔ اس نے رکشے سے اتر کر ان سے کہا کہ اسٹریچر لے آئیں۔ وہ دوڑ کر اسٹریچر لے آئے جو باہر ہی پڑا ہوا تھا۔ اس نے رکشے والے کو پیسے دیے اور کراہتی ہوئی ماں کو ان لوگوں کی مدد سے اسٹریچر پر لٹا دیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا اور پوچھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ اتنے میں یونیفارم میں ملبوس ایک آیا قسم کی عورت بھی آ گئی۔ اس نے دیکھا عورت مریضہ ہے تو باقاعدہ اسٹریچر کو چلا کر ان کے ساتھ اندر آ گئی۔ پھر اس نے طلعت کو بتایا کہ سیڑھیاں چڑھ کر ڈاکٹر قدیر کا دفتر ہے جو ایمرجنسی وارڈ میں 24 گھنٹے رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے چٹ لائیں یا ان کو ساتھ لے کر آئیں، پھر وہ جہاں کہیں گے وہ مریضہ کو لے کر جائیں گے۔
तल्लत घबरा गई। मैं ऊपर जाऊंगी, मेरी माँ यहाँ अकेली पड़ी रहेगी। हाय बीबी, आपा ने आगे आकर कहा, हम किस मर्ज की दवा हैं, हमारा यही काम है मरीजों के पास खड़े होना, उनकी हिफाजत करना। आप दौड़कर जाएं, देर ना करें। तल्लत अपनी माँ को उनके पास छोड़कर ऊपर चढ़ गई। डॉक्टर साहब दफ्तर में मौजूद न थे, वार्ड का राउंड लेने गए थे। इनको ढूंढकर बताने और लाने में तकरीबन 1 घंटा लग गया था। डॉक्टर साहब नीचे आए, जल्दी जल्दी मरीज को देखा, मगर मरीजा तो रिक्शे से उतरने के बाद ही अपनी मंजिल पर रवाना हो गई थी। फिर भी डॉक्टर साहब ने उसे अच्छी तरह देखा। नर्स सारे आले वहीं उठा लाई थी। सारी कोशिशों के बाद डॉक्टर ने हमदर्दी से तल्लत की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी। तो तल्लत की चीखें निकल गई। माँ, ये तूने क्या किया? डॉक्टर का इंतजार भी न किया। तल्लत का रद्द अमल कुदरती था। डॉक्टर ने नर्स से कहा, जब जरा सुकून में आए तो इन्हें दफ्तर में ले आएं। जरूरी कार्रवाई करके इन्हें कागजात दे दिए जाएंगे। थोड़ी देर चीख चिल्लाकर तल्लत ने पर्स में से अपना मोबाइल निकाला ताकि बाप को इत्ला दे, मगर उनका नंबर अभी तक बंद मिल रहा था। नर्स उसे साथ ले गई, कागजात बनाकर दिए और एम्बुलेंस पर मैयत ले जाने की इजाजत भी लिख कर दे दी। रोती हुई तल्लत माँ की लाश के पास आ गई। उस वक्त अस्पताल का एक मुलाजिम खुद स्ट्रेचर के पास आ गया। तल्लत ने पूछा, एम्बुलेंस कहाँ से मिलेगी? उस आदमी ने, जिसका नाम सराजुद्दीन था, बाहर निकलकर दफ्तर का रास्ता बताया कि परमिट वहाँ दिखा दें, एम्बुलेंस आपके साथ ही आ जाएगी। मगर मेरी अम्मी यहाँ अकेली पड़ी रहेंगी, उसने रोते हुए कहा। हाय बीबी जी, हम किस मर्ज की दवा हैं? आया ने फिर उसी अंदाज में कहा, हम यहाँ आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं, आप जाएं, जल्दी जल्दी जाने का बंदोबस्त करें। जो वो एम्बुलेंस के दफ्तर की तरफ जा रही थी, उसके वालिद का फोन आ गया। वो अभी गुजरावाला पहुँचे ही थे। उसने रो रो कर सारी बात अपने वालिद को सुनाई। उसने कहा वो अभी इसी बस से वापस आ रहा है, उसके आने तक हौसले से सारे काम करे। तल्लत के जाते ही आपा हनीफा बेगम ने लाश के ऊपर पड़ी हुई चादर इस तरह हटाई कि उसके चेहरे और कलाइयों का जायजा ले लिया। फिर कोई बात सरगोशी के अंदाज में सराजुद्दीन के कान में कही। सराजुद्दीन बाहर निकलकर एम्बुलेंस के दफ्तर की जानिब मुंह करके खड़ा हो गया। हनीफा बेगम ने बड़ी महारत से लाश की कलाइयों में पहनी हुई सोने की 12 चूड़ियां और दोनों अंगूठियां उतार ली। कानों के टॉप्स रहने दिए कि उन पर किसी वक्त भी नजर जा सकती थी। अभी सराजुद्दीन की तरफ से एम्बुलेंस रवाना होने का सिग्नल नहीं मिला था, इसलिए वो जल्दी से नजदीकी गुस्लखाने में घुस गई। 12 चूड़ियां और दोनों अंगूठियां उसने अजार बंद के साथ बांध ली और शलवार के अंदर बनाई गई एक जेब में डाल के इत्मीनान से बाहर आ गई। तल्लत के वालिद ने कई अजीजों को इत्तला दे दी थी, इसलिए एम्बुलेंस में बैठी तल्लत टेलीफोन वसूल करती और रोती रही। सराजुद्दीन और हनीफा ने बड़ी हमदर्दी और खुलूस के साथ एम्बुलेंस में मैयत लिटाने की कार्रवाई की, बल्कि हनीफा तो तल्लत के गले लग कर रोई और उसे तसल्लियां भी दी। मौत की खबर फैलते ही घर मेहमानों से भर गया था। मोहल्ले में जिसने भी सुना चला आया। जब बेटियां आ गई तो नहलाने और कफनाने का मरहला शुरू हुआ। माँ के बदन पर पानी डालती बड़ी बेटी रफाकत चौंक गई। तल्लत को बुलाया और कहने लगी, अम्मी तो हमेशा 12 चूड़ियां और हाथों में 2 अंगूठियां पहने रखती थी, कहाँ है वो? हाँ, तल्लत ने हवास बाख्ता होते हुए उसके कानों की तरफ देखा। ये तो टॉप्स हैं। रफाकत ने उसे दिखाए। अभी नहाने वाली ने उनके कानों से उतार कर दिए तो मुझे चूड़ियों और अंगूठियों का ख्याल आया। हाँ आपा, जब मैं उन्हें रिक्शे में डालकर ले गई थी, कई बार उनकी नब्ज देखी थी और हर बार चूड़ियां हटा कर ही देखी थी। उस वक्त अंगूठियां उनके हाथों में थी और जब एम्बुलेंस में ला रही थी उस वक्त देखी थी। सच्ची बात है आपा, मुझे कहाँ होश था। तल्लत फिर जोर जोर से रोने लगी। मैं अकेली थी, कोई बड़ा भी पास नहीं था। भागती इधर जाती, भागती उधर जाती। उस पर फोन भी आने लगे थे। और कौन था मैयत के पास? हाँ, उसने दुपट्टे से आंखें साफ की। अस्पताल की एक आया थी जो वहाँ सफाई का काम करती है और एक मददगार था। तल्लत ने सारी तफसील बहन को बताई। मजीद बातें करने का वक्त नहीं था। इस मरहले में हर काम का वक्त मुतय्यन होता है, मगर ये जरा सी तशवीश भरी खुसर पुसर सारे घर में फैल गई।
हाय हाय, अस्पताल में किसी ने मैयत की चूड़ियां उतार ली। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। सोइम के बाद दोनों बहनें रफाकत और तल्लत अस्पताल चली गई। इसी तरह रिक्शे में बैठकर सामने 2-3 मुलाजिम खड़े थे। तलत बहन को लेकर इस तरफ बढ़ी। सबको गौर से देखा। इनमें सराजदीन को पहचान गई। आपको मालूम है, परसों में अपनी अम्मी जान को लेकर आई थी और वो यहाँ आते ही फौत हो गई थी। बीबी जी, यहाँ रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं, कुछ फौत भी हो जाते हैं। अब हम किस किस को याद रखें? भाई, तुम्हारे साथ एक औरत भी खड़ी थी यहाँ, तुम दोनों ने मेरी बड़ी मदद की थी। बीबी, हमारा काम खिदमत करना है, जो भी आता है हम उसकी बढ़कर खिदमत करते हैं। बात क्या है बीबी? एक नेक खिदमतगार ने बढ़कर पूछा। हमारी अम्मी की कलाइयों से किसी ने सोने की 12 चूड़ियां और 2 अंगूठियां उतार ली थी। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे बीबी जी, आप क्या कह रही हैं? अगर अस्पतालों में ऐसी हरकतें होने लगी तो खुदा का कहर ना नाजिल हो जाए। मगर वो औरत कहाँ है? कौन सी औरत बीबी जी? ये इर्द गिर्द सारे खिदमतगार औरतें फिर रही हैं। आगे बढ़कर खुद ही पहचान लें। पूछना और फिर किस्सा दोहराना, फिर एक जैसे रद्दे अमल का इजहार होना। हाय वाय के सिवा कुछ ना मिला। दोनों बहनें मलाल लिए घर आ गयी। हनीफा बेगम ने घर जाते ही एक हफ्ते की अर्जी भेज दी थी कि मेरी बेटी शदीद बीमार है और मैं कामोकी जा रही हूँ। ये अर्जी ले जाने वाला सराजदीन था। हनीफा कामोकी चली गई। उसका दामाद मकसूद अली किसी सरकारी दफ्तर में चपरासी था। उसकी शादी को 3 साल हो गए थे। उसने जहेज में मोटरसाइकिल मांगी थी। शादी के वक्त हनीफा मोटरसाइकिल नहीं दे सकी थी, मगर उसने वादा कर लिया था कि 1 साल के बाद ले देगी। अब उनका एक बच्चा भी हो गया, इसलिए उसके दामाद ने साफ कह दिया था कि अगर मोटरसाइकिल नहीं लेकर देनी तो अपनी बेटी को बच्चे समेत ले जाओ। कामोंकी जाकर हनीफा ने अपने दामाद को बुलाया और चूड़ियां उसके सामने रखकर बोली, बेटा, यही मेरा जीना मरना है। सारी जिंदगी की कमाई है जो मैंने बचा कर रखी थी, मगर ये अपनी बेटी और दामाद की खुशियों से ज्यादा कीमती नहीं है। बेटा, तुम ये चूड़ियां बेचकर मोटरसाइकिल ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अम्मा तो कितनी चालाक है, तूने शादी पर ये चूड़ियां मुझे क्यों नहीं दी? इसी दिन के लिए रख छोड़ी थी, अब भी तुझे नहीं अपने दामाद को दे रही हूँ। उसने बेटी के हाथ से चूड़ियां छीन ली जो बार बार पहनकर देख रही थी और दामाद की गोद में रख दी। हनीफा के जाने के बाद बेटी और दामाद सोच में पड़ गए। दामाद तो सोने की ताज़ा कीमत भी पूछ आया था। चुनाचे तय हुआ कि सिर्फ 4 चूड़ियां बेचकर मोटरसाइकिल खरीद ली जाए और बाकी चूड़ियां किसी कड़े वक्त के लिए संभाल कर रख ली जाएं। जिस दिन मकसूद अली नई मोटरसाइकिल खरीद कर लाया तो बीवी ने मिन्नतें करके बाकी की 8 चूड़ियां कलाई में कुछ रोज पहनने की इजाजत मांग ली। कुछ दिन बाद हनीफा वापस अस्पताल अपनी ड्यूटी पर आ गई। फुर्सत मिलते ही सराजदीन और हनीफा एक दरख्त के साए में आकर बैठ गए। कोई आया था? हनीफा ने सरगोशी में पूछा। हाँ, तीसरे ही दिन 2 बेटियां आ गई थी, तेरा पूछ रही थी। फिर उन्होंने बड़ा शोर मचाया, एक एक से पूछा, डॉक्टर साहब के कमरे में भी गई। फिर क्या होना था? मैं तो साफ मुकर गया कि मैंने कभी नहीं देखा हो। मेरा पूछा था उन्होंने? हाँ, जिसके साथ तू गले लग लग कर रो रही थी, उसने बार बार पूछा था। तूने क्या कहा? मैंने कहा, आपके इर्द गिर्द इतनी माइयां घूम फिर रही हैं, पहचान कर पूछ लो। मुझे क्या पता उस दिन कौन आया, कौन गया और कौन मेरे साथ था। सराज और हनीफा कहका लगाकर हंसने लगे। अच्छा, अब मस्ती मत कर, निकाल मेरा हिस्सा। सिराज, सच बात बताऊं, तुझे तो पता है मैंने अजारबंद के साथ बांध कर चूड़ियां लटकाई थी, मगर गिरा जरा ढीली थी। जब मैं जा रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला, एक एक करके चूड़ियां बस के अंदर ही गिर गई। वो तो जब एक मुसाफिर ने एक चूड़ी उठाकर शोर मचाया तब मुझे पता चला। तू बकवास करती है, सराजदीन चिल्लाया। तेरी नीयत बदल गई है, तू कमीनी हो गई है, कमजात, बेगैरत। मैं तुझे अभी पकड़वाता हूँ। हनीफा ने जेब से 2 अंगूठियां निकालकर हथेली पर रखी और बोली, तू ये ले ले, कसम से यही बची हैं। मैं तेरा गला दबा दूंगा, शोर मचाएगा तो अपना ही कुछ बिगाड़ेगा। तू भी इस वारदात में शामिल था। तेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं तुझे जलील करवाऊंगा। सराज, अपने आप को काबू में रख, मैं भी MS को बता दूंगी।
पिछले हफ्ते जो नौजवान हादसे में गुजर गया था, तूने इमरजेंसी वार्ड में उसकी 2.5 लाख की घड़ी उसी वक्त उतार ली थी। वो लोग घड़ी ढूंढ रहे थे, याद है उनका रोना धोना? कमीनी औरत, मैंने इसमें से तुझे हिस्सा दिया था। कितना दिया था? सिर्फ 5,000 रुपए। और ये चूड़ियाँ तो कई लाख की होंगी जिनके नसीबों की होंगी। मेरे लिए तो एक चूड़ी भी हराम है। अल्लाह करे तेरे कफन पर लगे हनीफा। सराज के मुंह से झाग निकल रही थी। ओए बेगैरत, मुर्दों के जेवर और घड़ियां चुराने वालों की बद्दुआएं नहीं लगती। हनीफा जोर जोर से हंसने लगी। देख सराज, हम दोनों का मौज लगा हुआ है। कभी तू पल्ला मार लेता है, कभी मेरा दाव लग जाता है। गुस्सा ना खा, मैंने पता करवाया है। ये अंगूठियाँ 2 लाख की हैं। 1 लाख भी तुझे मिल जाए तो ऐश करेगा, वरना सराज गुस्से से फंकारा, वरना गंदगी में पत्थर फेंकेगा तो छींटे तेरे ऊपर भी आएंगे। दोनों का अंजाम एक जैसा होगा। हनीफा सीढ़ियों पर पोंछा लगाती नीचे आ रही थी कि उसकी जेब में पड़ा फोन फड़फड़ाया। उसने हाथ रोककर फोन निकाला और चीखती हुई बाहर को भागी। टैक्सी पकड़ी और कामों की रवाना हो गई। रोती और दुआएं मांगती जाती। फोन पर उसके दामाद के एक्सीडेंट की खबर आई थी। तफसील कोई बता नहीं रहा था। उनके घर पहुंची तो सारा मोहल्ला जमा था। उसे फौरन जाए हादसा पर ले जाया गया, जो पुलिस के घेरे में था और कार्रवाई नोट हो रही थी। 1 हफ्ता पहले मकसूद ने मोटरसाइकिल खरीद ली थी। 8 दिन बकायदा चलाता रहा था। आज पहली बार बीवी ने कहा था हमें भी सैर कराओ। वो खुद तैयार हुई। उसने सोने की चूड़ियां पहनी और 1 साल के बच्चे को भी तैयार किया। बीवी और बच्चा पीछे बैठ गए। आबादी से जरा बाहर निकले तो मोटरसाइकिल एक ट्रक से टकरा गई। बीवी और बच्चा मौके पर फौत हो गए। दामाद की टांगे टूट गई, मगर पुलिस अभी तक इस बात का सुराग नहीं लगा सकी थी कि पीछे बैठी हुई औरत की पूरी कलाई कौन काट कर ले गया था और क्यों। उधर पब्लिक अस्पताल के बिछवाड़े कोड़ा किटकर चुनने वालों की झग्गियों के आसपास फटे पुराने कपड़ों में एक औरत नजर आती है, जिसके हाथ में एक गुड़िया होती है। हमेशा गुड़िया का एक बाजू टूटा हुआ होता है। वो औरत दीवाना वार राहगीरों, मोटर वालों और साइकिल वालों के पास जाती और कहती है, मेरी बेटी का बाजू वापस ला दो, अल्लाह के वास्ते मेरी बेटी का बाजू दे दो, चूड़ियाँ रख लो, कलाई दे दो, मेरी इकलौती बेटी रो रही है देखो। वो गुड़िया को आगे करती है, रोटी नहीं खा सकती, बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, खुदा के लिए मेरी बेटी की मदद करो। वो सारी रात रोती रहती है, मुझे सोने नहीं देती, बेचारी पागल है। ये कहते हुए लोग गुजरते हैं और वो हवाओं के पीछे भागती रहती है।